Good morning, everyone. Priyanka, good morning. Chris, good morning. Let others to join and we'll start. Good morning, Megha. Good morning, Swagatika. Barsha, good morning. Shobha, good morning, and welcome to the class. So we are doing the second part of industrial relation. So the first question for the day is: arrange the following in the correct sequence based on the years of their formation, starting from earliest to the latest. Council of Indian Employers, Standing Conference of Public Enterprises, All India Manufacturers Organization, National Association of Software and Service Companies. So these are the your what you can say, the employers organization. You have to arrange them as per the sequence. See students, one thing I want to clear, whoever, like, you are attending the live and one student who would be seeing the recorded. See, this questions, the content which I am providing you is copyrighted. There are number of these students recent, yesterday only, like they come, they do the course. I'm not saying you cannot start the YouTube channel of yours. You can do, you can teach, you can start your YouTube channel, but using my content is completely illegal. Okay, I have warned that person, she is good student, so I have warned her verbally. So anyone who repeats it, everything, I
understand the way I make the questions. I can identify if the question is created by me. I can identify the content created by me. They are not available anywhere. The questions are not available anywhere on the internet other than me. The questions which I am creating, they are not available. And even the content which I am creating, they are not available in the format I am creating, the format, the way I am writing. So it's easy for me to identify. Even if someone is changing the color or something, if they feel they are changing, no, it's not. So you all students are going to either be assistant professor or PSU, or wherever you go, you are not allowed to use the copyrighted material. I have already warned. The first warning would be verbal, then the legal action would be taken. Anyways, so why I'm saying this in the class? Because the students attending the class are doing this. They have cleared the exam. Very good. I do congratulate them. I do promote them. But if you're using that in another way, using my content as it is, you're not putting your efforts, because I put a lot of effort, so it hurts me. So if anyone is doing this again in future, it would be legally actionable. So arrange the following in the correct sequence. So if we talk about the employers organization, the correct sequence is option number 3, All India Manufacturers Organization 1941. Option A, then comes A, Council of India Employers 1956. Then your B, Standing Conference Public Enterprises. Now, see, remember, in this question you need to know what kind of organization they are. So this is an apex. This is apex related to what? This is also called as an apex. Apex related to what? This CIE is associated with 2 main bodies or 3 main body. What are they? So you need to know the details as well. Next question. Informative participation, consultative participation, associative participation, administrative participation, decisive. This is workers' participation in management's forms. Different forms you can say. Okay, forms or levels. Okay, chalo. You have to match them. Please match. What would be the correct? What is informative level participation? What is... Chalo. What would be the correct answer? Let me see. Informative level of participation. What is informative? क्या होता है? Workers participation in management का मतलब क्या है? The idea behind the workers participation in management is allowing the employees to participate in the decision making, right? That is the idea behind workers participation management. And why this should be allowed in decision making process? To have or create a feeling of belongingness, making them understand that they too are responsible for whatever is going on in the organization. Giving the responsibility, when you are giving them the responsibility for anything, they would be more liable, accountable for the same thing. So workers participation in management, which was introduced by 42nd amendment
under the Indian Constitution under Article 43A can be introduced or can be practiced at the different level. The first level is informative participation. Informative participation का मतलब होता है just the information will be shared with the employees. तो employees से related like the budget related to the whatever the employee is dealing with it, the decisions which are taken for the employees work, for their maybe the layoff decision or something like that, promotion decision, only the information is shared, sharing of information is done, and that too is like confidential. Any of the employee who is given this information are not allowed to disclose it. So this level of participation is called as informative participation. Here employees have no role to play. They are not playing any role. Only the thing is they are given the information, making them feel okay. We are given the information what is going on in the organization. Consultative participation. Here, if there is a problem, किसी तरीके का अगर problem occur होता है, and if there is anything new to be added or anything new to be introduced, किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या उस प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फॉर दैट द व्यूज आर कंसल्टेड. एम्प्लॉयज अपनी बात रखते हैं, सजेस्ट करते हैं, और उनकी बातों को मानना नहीं मानना ये एम्प्लॉयर का डिसीजन है, एंड हेंस दे आर नॉट बाइंडिंग. एम्प्लॉयज जो भी बात रखेंगे, जो भी उनसे कंसल्ट किया जाएगा, देयर सजेशंस आर नॉट बाइंडिंग. Employer is not binded enough or binded to accept to follow it. ठीक है. अब हम आते हैं associative participation. What is associative participation? In this, basically what happens, workers decide something. Here employer becomes obligate. Now employer become associative. They become a part, employee and employer become a part of certain association or a team, you can say, where not exactly team, rather would say कि worker जो होते हैं किसी तरीके से employer के decision में associate हो जाते हैं. तो workers क्या करेंगे, they have a council, they will make a decision, they will come up with certain decision. वो कुछ decision लेंगे, कुछ decide करेंगे. तो एम्प्लॉयर का क्या हो जाता है, उसको एक्नॉलेज करना और वो डिसीजंस को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना, ये हो जाता है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एसोसिएटिव. तो वर्कर्स काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है उस पे एक्नॉलेज करके उसको किसी तरीके से वर्क करवाना. एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि मैनेजमेंट मेक्स सर्टेन डिसीजंस रिलेटेड टू एनी मैटर, एनी फैक्ट. Those decisions are allowed or are given to the employees to implement. So workers are implementing the decision. It means what? They are given the responsibility to make sure that the decisions are made applicable properly. So here now they are participating in the implementation. They are now accountable for making sure that the decision works. Finally, डिसिसिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जॉइंट. दे टुगेदर कोई भी एक प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन वो जॉइंट एक साथ करेंगे. मैनेजमेंट अपने पॉइंट्स रखेंगे, वर्कर्स अपने पॉइंट्स रखेंगे, दोनों मिलके कॉन्सेंसस पे कलेक्टिवली नेगोशिएट करके इंटीग्रेटिवली, जहां इनका भी नुकसान ना हो, इनका भी नुकसान ना हो, दोनों की प्रॉफिट की बात हो, तो दोनों भी जॉइंट डिसीजन वर्क में करेंगे जहां वर्कर्स का रोल होता है. आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. एम आई क्लियर? वाई नॉट डी? मानसी डी का तो कोई यही नहीं आता है. सी दिस इज हाईली हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. इसके बाद भूलना नहीं है, ये जो मैंने दिए है ना आपको डिस्क्रिप्शन, यही इसके कीवर्ड्स है, यही इनके कीवर्ड्स है. इनको इसी से कीवर्ड्स लिखो. आई हैव इंटेंशनली क्रिएटेड दिस फ्यू 2 words only.
बिकॉज यही इनके कीवर्ड्स हैं जहां पे आपको क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में आता है, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग is associated okay, let me give you one question related to this. ठीक है, just hold on, I will give you one question so that you can actually answer it. So I'm adding one question related to it. Let me see how many of you are able to answer this question. So just a second. Okay, fine. So now what I want is you do these two questions. Write in the comment section. The first question is, in which of the level of workers participation management is under a moral obligation of acknowledging and implementing unanimous decisions of the workers council? Which level of participation allow workers to implement decision already taken with a high degree of shared authority and responsibility? Now understand, here also there are the keywords: unimplementing unanimous decision, higher shared authority and responsibility, right? So answer this one. Let me make it as A, and this question is B. So A first is what? A का आंसर क्या होगा? Just now we did the keywords. फर्स्ट का 1 कैसे? कैसे वर्षा? अभी हमने पढ़ा ना, जहां पे एक्नॉलेजमेंट की बात आएगी, एक्नॉलेज करना, वर्कर्स काउंसिल जब एक्नॉलेज कर, वर्कर्स काउंसिल के थ्रू लिया हुआ डिसीजन एक्नॉलेज करना और उसको किसी तरीके से वर्क एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे अप्लाई करे, ये होता है एसोसिएटिव. इज दिस क्लियर? इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन. वर्कर्स हैव टुगेदर टेकन सर्टेन डिसीजन, वो डिसीजन मैनेजमेंट के पास लेके गए और मैनेजमेंट ने, ठीक है, मैनेजमेंट उनको अप्लाई कर रही है. सो द आंसर फॉर दिस इज एसोसिएटिव. बी का बताएंगे. दोज हु आर नॉट एबल टू आंसर, प्लीज ट्राई इट and please work upon your basic concepts. अभी मैंने बताया, and if you're not able to do it, it means somewhere you're not able to understand the keywords which I am saying. So repetitively practice on this. Yes. इसका क्या होगा? Implement. Workers are allowed to implement. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. यहाँ पे वर्कर्स डिसीजंस ले लेते हैं, फिर मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशन होती है कि अब इंप्लीमेंट करो उन डिसीजंस को. यहां होता है
कि मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम हम वर्कर्स को देख रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको हायर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देना है, उनको अकाउंटेबल रखना है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जगानी है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब अगर नहीं फॉलो किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। सो इसका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। नाउ इज दिस क्लियर? ईच वन ऑफ यू प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. So next question, which of the following provisions were included in the participation of the Workers Management Bill 1990? Please do remember this. Okay, read it and answer. Give me a second. Hold on. Very good. So the answer for this is option number क्या होगा? 1. Oh, I have not marked the answer. ठीक है, एक मिनट. So the answer is option number 1. ठीक है, सी नहीं सही है. वही मैं आपको बताना चाह रही हूं, जिसके दिमाग में ये कंफ्यूजन आया है ना. सी इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड but it was never passed. The bill was introduced but the bill was not passed. ठीक है वर्षा, give me a second. It was not passed, it was introduced in Rajya Sabha. ठीक है, it was introduced in Rajya Sabha in 1990 but it was never passed. पास ही नहीं हुआ था, इसलिए तो उसके बाद में हमारे पास में कोई इससे रिलेटेड प्रोविजंस नहीं आए थे. ठीक है, बट मैं एक बार ना एग्जाम में आपको क्या पूछा गया है उससे, होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट. It was actually introduced. It was introduced. The word is, अगर introduce लिख के आएगा, ठीक है, अगर introduce लिख के आएगा तो आप इसको भी सही करेंगे. अगर इंट्रोड्यूस लिख के नहीं आएगा, पास्ट लिख के आएगा, तो ये कभी पास ही नहीं हुआ था. ये बिल कभी पास नहीं हुआ था. ये केवल और केवल इंट्रोड्यूस किया गया था. देयर वर मेनी रीजंस. क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे बिलीव्ड दैट वर्कर्स इंटेलेक्चुअल्स आर नॉट इनफ टू टेक द डिसीजंस. So this was one of the reason, and there were multiple reasons state-wise why the bill was not passed. Next, arrange the following schemes of workers' participation in management in correct chronological order. Highly important question. ठीक है, repetitively. Employee director in nationalized bank, shop council and joint council under 20-point program, work committee, workers share in equity, joint management council. चलो, very very simple question, and this is 100% one question would be there from the schemes of workers participation in management. Yes, so first is work committee. You know, जहां जहां पे 3 है उसको देखेंगे. ठीक है, वर्क कमिटी के बाद में आता है आपका जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल. तो यहाँ पे 1 दिया है तो ऑटोमेटिकली कट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर ए इज करेक्ट. So these are the years. Please do by heart them. It's very important. Next, which of the following are responsibilities of work committee? ये भी highly expected, repetitively asked question है. 17th session of ILC has given which work committee have to deal with which responsibilities or which not to deal and to deal.
सो यू नीड टू नो कौन से मैटर्स पे वो डील करेगी या नहीं करेगी. ठीक है, चलो रीड इट. Work committee are not required to discuss issues like ventilation, lighting, safety, and medical services. The work committee is responsible for the determination of the wages and allowances. The 17th session of Indian Labour Conference in 1959 constituted a tripartite body to examine the functions of work committee. The work committee should focus on condition of works, amenities, safety and welfare activities, but not on wages, provident and housing matter. Correct. So हमारे ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दो स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वर्क कमिटी एक्चुअली इनसे डील करती है और वर्क कमिटी वेजेस एंड अलाउंसेस से डील नहीं करती है. थोड़ा सा ना क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो. आई हैव क्रिएटेड द स्टेटमेंट्स, टू स्टेटमेंट्स विच थ्री स्टेटमेंट्स एक्चुअली विच आर हाईली सिमिलर एंड हाईली कंफ्यूजिंग. अगर आपने नॉट टू डील और डील वाले मैटर्स को नहीं पढ़ा है, उसके बिहाइंड का बेसिक आइडिया नहीं पता है, सो द कीवर्ड इज कीवर्ड, या मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, जितने भी मॉनिटरी वाले फैक्टर्स होंगे मॉनिटरी से रिलेटेड, उसमें वर्क कमेटी का कोई रोल नहीं होता है. जैसे पीएफ, वेजेस, इसमें कहीं पे भी वर्क कमेटी का रोल नहीं आएगा. वर्क कमेटी का रोल्स होता है हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड. इन सब से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, वर्क कमेटी पार्टिसिपेट करके डिसीजन ले सकती है. ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखेंगे तो एक बार डील एंड नॉट डील वाले मैटर्स को पढ़ के आप इजीली आंसर कर पाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट. Which of the following are the correct regarding workers' participation under 20-point program 1975? So Indira Gandhi, Mrs. Indira Gandhi, when she was Prime Minister, under her the 20-point program was introduced, and in this 20 point, so there were points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 points. 15th point, please do remember, this is also important. 15th point was of WPM, Workers' Participation in Management. अब ये आप बताएंगे इसमें से क्या सही है. Which of the following statements are correct? Okay, fine. So the answer is the scheme under 20-point program applies to manufacturing and mining industries employing 500 or more workers. Correct. पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. Shop councils are required to be formed in industrial units and decisions are taken up by voting process. No, दो हैं, एक तो याद रखेंगे, दो होते हैं. As per them there are two levels, shop council, joint council. डिसीजन जो होते हैं वो कॉन्सेंसस से होते हैं, वोटिंग से नहीं होते हैं. शॉप काउंसिल किस लेवल पे होंगे? आर दे एट इंडस्ट्रियल, आई मीन टू से दे आर फॉर्म्ड इन द इंडस्ट्रियल यूनिट, बट किस लेवल पे ये भी पता होना चाहिए. किस लेवल पे? इंडस्ट्री लेवल पे तो होते हैं, लेकिन शॉप है तो इट इज एट द शॉप लेवल. इंडस्ट्री के अंदर शॉप पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे शॉप काउंसिल क्रिएट होते हैं. जॉइंट काउंसिल पूरे एंटायर इंडस्ट्री लेवल पे क्रिएट होते हैं और ये वंस इन अ क्वार्टर इनकी मीटिंग होती है. तो आपका स्टेटमेंट 3, एक मिनट, द क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड हियर इज, हाँ 3 वाला करेक्ट है आपका, ये वाला गलत है क्योंकि ये यूनिट पे नहीं शॉप या डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा और ये कॉन्सेंसस से डिसीजन होता है, तो ये ऑप्शन गलत. 3 वाला सही है. शॉप काउंसिल इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट
are consisting of an equal representative from both the employer and workers with the total members not exceeding what 12. This is also correct. 1, 2, 1, 3 and 4 are correct. ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड इन इंडस्ट्रियल यूनिट, इसको हम लेके भी करेक्ट चलेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता दूं ये शॉप लेवल पे होता है और इनकी डिसीजन वोटिंग पे होती है. शॉप काउंसिल इंडस्ट्रियल यूनिट में होती है और इनके रिप्रेजेंटेटिव इक्वल इन नंबर्स होंगे, नॉट एक्सीडिंग 12, मैक्सिमम इज 12. ठीक है, जिस तरीके से हम जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल में पढ़ते हैं मैक्सिमम 12 है, मिनिमम 6 होते हैं, सेम हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are correct regarding Code of Discipline 1958? Fine. So code of discipline is a voluntary accepted principles, set of 3 principles which are voluntarily accepted by management and the ट्रेड यूनियन. मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन वॉलंटरीली कोड ऑफ डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करते हैं और इसके अंदर में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजमेंट भी एग्री करती है और ट्रेड यूनियंस भी एग्री करते हैं. पर्पस क्या है कोड ऑफ डिसिप्लिन का? to maintain a good industrial relationship between the management and the trade unions. ये statutory provision नहीं है. This is non-statutory provision. So code of discipline was adapted in 1958 and it applies only to public sector. No, public, private, both. Dispute between management and workers should be resolved through negotiation, conciliation, voluntary arbitration rather than adjudication. True. Code of discipline specify that union must be recognized only if they adhere to principle. Yes. जो code of discipline है इसके अंदर में ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन का प्रोविजन है, लेकिन वो रिकॉग्निशन उन्हीं ट्रेड यूनियन को मिलेगा if they have actually accepted the code of discipline. ठीक है. Code encourages unilateral decision by management. No arbitrary decision, no unilateral decision. एक तरफा डिसीजन नहीं लेना है, एक तरफा डोमिनेटिंग डिसीजन नहीं लेना है. ठीक है. No favoritism. So this is also not correct. So what are two correct statement? 2 and 3. Next. Which of the following workers organization initially accepted the code of discipline? बहुत important question है from your exam point of view. Yes. ड्राफ्ट जो था वो सबमिट किया गया था 15th सेशन में और जो अडेप्टेशन था, मेघा ऐसे याद रखेंगे, ड्राफ्ट जो था वो 15th सेशन में हुआ था, अडेप्टेशन जो था वो 16th सेशन में. इंट्रोडक्शन की जगह पे आप वर्ड याद रखेंगे अडेप्टेशन. सो 16th सेशन में अडेप्ट किया था वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने और एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन ने. ठीक है, चलो आंसर करेंगे. आई न्यू पीपल विल मेक अ मिस्टेक हियर. प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. मुझे पता था आप लोग इसमें गलती करेंगे. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर दोबारा आंसर करेंगे. जितने लोगों ने ए मार्क किया ना, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा से आंसर करेंगे. अगेन आई एम सेइंग, डोंट रीड द क्वेश्चंस इन हरी. Don't. Everything in the question is to confuse you. Chris, very good.
क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एम्प्लॉयर का पूछा है क्या? आपको ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं करना आ रहा है यहाँ पे कि एम्प्लॉयर्स क्या हैं और वर्कर्स क्या हैं। यहाँ क्वेश्चन केवल, द क्वेश्चन इज ओनली आस्किंग यू अबाउट द वर्कर्स, ओनली अबाउट द वर्कर्स, इट्स नॉट अबाउट द एम्प्लॉयर। यस, ये इन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है, लेकिन कौन से वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया है? दीज आर एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। केवल और केवल ऑप्शन 3 है जिन्होंने अडेप्ट किया था कोड ऑफ डिसिप्लिन। CII भी आपका क्या है? एम्प्लॉयर का है, लेकिन इन्होंने भी अडेप्ट नहीं किया था। इज दैट क्लियर एवरीवन? Understood? Please do read the questions properly. This is now the trend is this way the questions are being asked in exam, जहां आपको कंफ्यूज किया जाएगा एक एक वर्ड से, एक एक लाइन से, ठीक है। चलो, so the answer for this is option number D. Next, which of the following statement are included in the code of conduct for the trade unions? Important again from the exam point of view, read it and answer. There is no fifth option. Sorry for this. So I will be just. Which of the following statement are included in code of conduct? पहले तो code of conduct में और code of discipline का difference समझेंगे, ठीक है। code of conduct और code of discipline में क्या फर्क है? तो code of conduct और discipline दोनों ही 1958 में अडॉप्ट किए गए थे। कोड ऑफ डिसिप्लिन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ने और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट किया था। फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग द गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय या मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन। तो ये रेगुलेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियंस। Again, I'm saying it's an voluntarily accepted principles agreement between management and the employee. Code of conduct था ट्रेड यूनियन राइवलरीज को हटाने के लिए। इंडिया में जब ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन देने की बात आई थी कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंडर में, तो एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन होते हैं और ये ट्रेड यूनियंस के अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उनको रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन उस रिकॉग्निशन के चलते कि हमारे पास में 25% लोग बिलोंग करते हैं इस इंडस्ट्री से, हमारे पास में 25 है, हमारे पास में 50 है, देयर वाज एन राइवलरी, they were fighting among themselves, so this was actually creating another issue. So in order to remove the rivalry among the trade union, code of conduct को बनाया गया। Here the code of conduct, the trade union accept these certain principles and they have the following principles to be followed, या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो एक्सेप्ट करेगा। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट किया था। सो द क्वेश्चन हियर इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। एवरी एम्प्लॉय इन एन इंडस्ट्री हैज अ राइट टू ज्वाइन अ यूनियन ऑफ देयर चॉइस विदाउट कोरिजन। यस, कोई जबरदस्ती के बिना, हाँ, अपने आप, अपने मन से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ड्वेल मेंबरशिप ऑफ यूनियंस इज अलाउड इन ऑल केसेस? नो, नॉट अलाउड। एक ट्रेड यूनियन का मेंबर बनेंगे, नहीं तो ये राइवलरी का फंडा खत्म ही नहीं होगा, मामला राइवलरी रहेगी। कोड मैंडेट्स द रेगुलर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडीज एंड ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन ईयर, यस। और ये कितने साल में होता है? एवरी 3 ईयर। द कोड प्रमोट कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, प्रोविजनलिज्म? नो, इसके बेसिस पे तो ट्रेड यूनियंस का क्रिएशन ही नहीं होगा। सो योर statement 1 and statement 3 is correct. So I would be removing this. So answer is option number C. Am I clear? Am I clear? ठीक है. So here option number dual membership is allowed, not allowed. So by mistake this is marked like this here. I will just correct it. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है क्रिस? आई होप द डाउट इज क्लियर. ठीक है, both these statements are not. See, I'm moving very, very slow, giving you the explanations of almost everything, each and everything. So make sure you are putting your efforts also to revise these questions, study them properly. क्योंकि अगर आप इनको भी पढ़ के जाएंगे, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इनको भी ध्यान में रखेंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Code of conduct was adopted by representative of which of the following trade union? Highly important. Chalo, read it and answer. तो कौन से ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट किया था 1958 में? तो ऑल ऑफ देम, 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम हैव अडॉप्टेड. प्लीज डू रिमेंबर देम कि सभी इन चारों ने ही अडॉप्ट किया था 1958 में. चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the main steps followed in disciplinary cases in the correct sequence of employee disciplinary procedure. अब आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे. मैंने डायरेक्टली स्टेप्स ना पूछ के उनके डिस्क्रिप्शंस को आपको पूछा हुआ है. तो आपके एग्जाम में जो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्या है? स्टेप्स लिख देते हैं और आपको अरेंज करना होता है. वैसे भी आ सकता है, लेकिन एज पर द ट्रेंड में थोड़ा सा मुझे एनालिटिकली समझ में आ रहा है कि अब डायरेक्टली ना पूछ के ऐसे डिस्क्रिप्शन पूछेंगे कंप्लीट लाइंस में, या 4-5 लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे और आपको अरेंज करना पड़ेगा उसे समझ के. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हियर, रीड इट एंड आंसर क्विकली. लेट्स डू, देयर आर मेनी क्वेश्चन. 15 मिनट रह गए हैं बस. अरेंज द फॉलोइंग मेन स्टेप्स. हाँ, फाइन. क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल है, डायरेक्ट विजिबल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले एम्प्लॉय इज इन्फॉर्म्ड, उसको बताएंगे, और एंड ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाई सच एक्शन हैज बीन हैपेंड. ठीक है,
क्यों नहीं तुम्हारे अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, ठीक है। अपना अपना मन वो रखिए, मत रखिए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए। ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन, अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू गैदर एविडेंस। अब आपने पता चल गया कि हाँ आपने एम्प्लॉई ने गलती करी है, उसको इन्फॉर्म भी कर दिया, वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, विटनेस और एविडेंस उनकी स्टेटमेंट्स लेंगे कि सच में वैसा मिसकंडक्ट हुआ था, किस लेवल तक का था। देन इफ द मिसकंडक्ट इज सीरियस, द एम्प्लॉय सस्पेंडेड। अगर वो बहुत सीरियस है, जस्ट लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, वेयर द एम्प्लॉयज या जो जिसके साथ में वो चीज हुई है वो उसको फेस नहीं कर सकता, या जो भी बहुत ज्यादा सीरियस है, यू विल बी सस्पेंडिंग द पर्सन, उसको सस्पेंड किया जाएगा। एक बात याद रखेंगे, सस्पेंशन कोई भी पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन का मतलब होता है इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी चल रही है। देन फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंडेशंस इंक्वायरी कमिटी या इंक्वायरी ऑफिसर कर लेगा, वो आपको रिकमेंडेट करेगा कि इसको क्या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेशन द डिसीजन इज मेड ऑन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर द एम्प्लॉई। तो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following are the minor punishments as per the disciplinary action? Verbal warning, suspension, fine, dismissal। ये बहुत सिंपल है, बट हाँ पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पीएसयू में पूछा गया है, तो हो सकता है आपको भी पूछा जाए। So which of the following are minor punishment? Verbal warning, suspension, fine and dismissal। मेजर पनिशमेंट होते हैं, या ग्रॉस पनिशमेंट बोल लो आप उनको, और माइनर पनिशमेंट होते हैं। यस, आपकी वर्बल वार्निंग और आपका फाइन, ठीक है, ये है आपके माइनर। नेक्स्ट, विच ऑफ द व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी प्रोसेस? क्या है ये, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इसका पर्पस पूछा है, to punish the employee for the poor performance, to help the employee understand the performance problems and improve, to suspend the employee without pay, to immediately terminate the employee। Eliminate the negative sentences and answer the question। Progressive itself is saying, progressive जहां ये word आएगा मतलब something which is positive in nature। Correct। So the answer is option number B। Progressive disciplinary process is related to identify where the performance is lacking, what are the problems, and accordingly helping the employee to improve। Which of the following is the correct? करने के बाद में नोटिस इश्यू करेंगे इंक्वायरी के लिए कि हाँ इंक्वायरी होगी, और उसके बाद में इशू करेंगे चार्जशीट पर्सन को कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया है, आप अपना मत अपना साइड रखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन यानी फैक्ट वगैरह आइडेंटिफाई करना, डोमेस्टिक इंक्वायरी होगी। डोमेस्टिक इंक्वायरी करने के बाद में एविडेंस, एग्जामिनिंग द एविडेंस, जो एविडेंस आपने फैक्ट कलेक्ट किए हैं, इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट एंड फाइंडिंग सबमिट करेगा, एंड लास्टली क्लोजिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following articles of the Indian Constitution follows the principle of natural justice? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 311 दोनों ही हमारे नेचुरल जस्टिस से डील करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है दैट यू आर नॉट गोइंग टू पनिश एनीवन विदाउट हियरिंग हिम, यू आर गोइंग टू गिव हिम द चांस ऑफ गिविंग हिज एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। दूसरा ये कहता है, पहला ले लो या दूसरा ले लो, दूसरा ये कहता है कि आप
किसी को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों ही चीजें आपकी क्या आएंगी, आपके ये तीनों ही आर्टिकल एक्चुअली नेचुरल जस्टिस से डील करती है। क्या कहना चाह रहे हो आप प्रियंका? नहीं, हियर इज ऑडी, ऑडी अल्टरम, ऑडी वॉइस, ऑडियो, ठीक है, वॉइस से आया है। अल्टरम यानी अल्टरनेट पार्टी, पार्टरम इज पार्टी। तो आप दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सुनने का। सो गिविंग अ पर्सन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू आंसर द केस अगेंस्ट देम। Which of the following is not an example of bias in the context of natural justice? Read it and answer. बायसनेस हो सकती है दोनों में, ठीक है। जो सुन रहा है, जो जजमेंट दे रहा है, वो बायस कर सकता है, वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए नेचुरल जस्टिस में स्पेसिफिकली। करेक्ट, डी इज नॉट द बायस। पर्सनल बायस हो सकता है, मेरी और उसकी आपसी दुश्मनी है, इसलिए मैं सही तरीके से प्रोसेस को कैरी नहीं कर रही हूँ, नेचुरल जस्टिस को इग्नोर कर रही हूँ। प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब होता है कि उसके लिए मेरा कुछ अपने प्री कंसीव्ड एक अजम्पशन है, परसेप्शन है, और उसके बेसिस पे मैंने जजमेंट दे दी। पेक्यूनरी बायस का मतलब होता है मॉनिटरी, कहीं ना कहीं पैसा खा रहा है बीच का आदमी, ठीक है, तो वो भी आपका एक बायस है। लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट द बायस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ हॉट स्टोव रूल विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। रीड इट एंड आंसर। What you have to remember is the sequence of the steps given by hot stove rule. What is the sequence? What are the 4 steps? सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। एंड व्हाट इज हॉट स्टोव रूल डीलिंग विथ और रिलेटेड टू? तो ये बेसिकली डिसिप्लिनरी प्रोसेस से रिलेटेड होता है कि अगर कोई मिसकंडक्ट करता है या ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिनरी एक्शंस, बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शंस कैसे लेने चाहिए। So any of the misconduct or disciplinary action or the rule which you are taking should be giving an immediate warning, ठीक है। It should have an immediate effect. ऐसा नहीं कि आज किया है तो सबसे पहले तो वार्निंग देंगे कि आप अगर कोई मिसकंडक्ट करते हो तो आपके साथ ये हो सकता है, ठीक है। उसका इफेक्ट इमीडिएट होना चाहिए। कंसिस्टेंट यानी सभी के लिए बराबर हो, सभी के लिए नहीं, एवरी टाइम द पर्सन इज डूइंग द मिसकंडक्ट और हर बार उसे सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इम्पर्सनल का मतलब होता है सारे सभी लोगों के लिए सेम रहेगा, सारे लोगों के लिए सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इमीडिएट, एम्प्लॉय रिसीव्स एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। वार्निंग का आपके देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट डिसिप्लिन इज इन प्लेस, नहीं ये भी नहीं है। वार्निंग इज प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ क्लियर वार्निंग, तो यहां पे ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत मार्क है। ए इज बी, बी इज डी, consistence is A, C is 4. I'm actually writing wrong. 1 is B, 2 is D, 3 is A, and your 4th is C, ठीक है। इस कोई ऑप्शन है B, D, A, C, ये ऑप्शन नंबर A, मैकगॉर्गन, ऑप्शन इज ए, ठीक है। यहां पे गलत मार्क हुआ है, आई विल करेक्ट दिस।
ठीक है, नाउ दीज वेयर द क्वेश्चंस फॉर द डे। हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम ने केवल और केवल WPM और ये सारी चीजें करी हैं। अब हमारा बचता है ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। डू practice all these questions properly because they are important from the exam point of view. They are clearing your much more many of the concepts. ठीक है, so I'm ending this session. I have another class. कलेक्टिव बार्गेनिंग कल के क्लास में कर लेंगे। किया नहीं आए क्या क्वेश्चंस कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड? वी डिड इट इन यस्टरडे क्लास। किया था ना? नहीं किया? एक भी नहीं है? एक मिनट, हाँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओह, येस्टरडे नहीं, डे बिफोर येस्टरडे की जब भी क्लास हुआ था, कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्वेश्चन नहीं हुए हैं क्या? अगर नहीं हुए हैं तो आई विल ऐड द क्वेश्चंस इन दिस PDF। आप खुद उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आई डोंट नो हाउ क्वेश्चंस आर मिसिंग, व्हाई ओनली दिस मेनी क्वेश्चंस आर देयर। Anyways, I will add the questions and you will be doing it by yourself. ठीक है, you will do it by yourself. I will add the questions in this PDF itself and I will upload the PDF. You can download it and practice it by yourself. So thank you so much. We would be doing trade union. अब collective bargaining को नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियन करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस दे दूंगी, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। थैंक यू एवरीवन।